प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आजकल हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शंस की सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन whether the relation are on the set n of natural numbers defined as r is equal to order pair xy such that y is equal to x plus y. This is the relation and x is less than 4. तो बच्चों, it is a relation on the set n. So this r will be the subset of n cross n. और x की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है और नेचुरल नंबर है ये, तो इसलिए x की वैल्यू आपने बारी बारी 1, 2 एंड 3 पुट करनी है यहां पर और y की वैल्यू निकालनी है और 3 ऑर्डर पे आएंगे और वो इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म है। तो लेट अस कन्वर्ट दिस रिलेशंस फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म और बाद में फिर हमने इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिलेशन r is equal to x, y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4 and x belongs to natural number because this relation is on the set n. This relation is r is the subset of n cross n. Therefore, putting x is equal to 1, we get y is equal to 6. The first element of the relation will be equal to 1, 6, this order pair. Putting x is equal to 2, we will get y is equal to 7. This is again a natural number. Hence, 2, 7 will be the second order pair of this relation R. And at last, putting x is equal to 3, we will get 3 plus 5, that is 8. This is the value of y, this is the value of ordinate and this is the value of abscissa. Hence 3, 8 will be the third order pair of these relations. But we cannot put x is equal to 4 because it is given that x is less than 4. Hence these are the three order pairs of this given relation. और बच्चों, यदि हमें इस रिलेशन की डोमेन पूछी हो तो सेट ऑफ द एब्सिसास 1, 2 एंड 3, दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। रेंज पूछी हो 6, 7 एंड 8 विल बी द रेंज ऑफ दिस रिलेशन। और कोडोमेन तो इसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है बिकॉज इट इज ए रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो नाउ लेट अस discuss that this relation is reflexive, symmetric और transitive. तो बारी बारी हम इसे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। जो डेफिनेशंस हैं, कंडीशंस हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की, उनको चेक करेंगे कि ये रिलेशन जो है वो उनको सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बच्चों, ये r is equal to 1, 6, 2, 7 and 3, 8. These are the three order pairs of the given relation and it is the roster form of this relation. Now for reflexive के लिए condition है कि if any element a or x belongs to the given natural number, then a comma a must belongs to the relation. But in this case, 1 is the natural number which belongs to the natural number, but 1, 1 does not belongs to this relation. Hence, it is clear that it does not satisfy the reflexive condition. The condition is R is a relation on the set n of natural number. So here in this relation R, a comma a does not belongs to R because 1, 1 does not belongs to R.
2, 2 does not belongs to R. For 1 and 2 both belongs to the natural number. एक एलिमेंट भी नहीं है यहां इस रिलेशन में, एक ऑर्डर पेयर भी नहीं है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। बाकियों को तो छोड़ो, 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है। तो यहां पर a, does not belongs to R for every a belongs to natural number. Hence this relation is not reflexive. तो एग्जांपल से भी आपको क्लियर है कि 1, 1 does not belongs to R, 2, 2 does not belongs to R, 3, 3 does not belongs to R, and hence this relation is not reflexive. Now let us check the symmetric property of this relation. The relation is R 1, 6, 2, 7 and 3, 8. These are the three order pairs in roster form. So symmetric property is, for symmetric, if a, b belongs to R, this implies b, a must belongs to R. यदि a, b रिलेशन R का एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है, तो b, a भी उसका एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। और नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो हियर इन दिस केस 1, 6 बिलोंग्स टू R। तो सिमेट्रिक होने के लिए 6, 1 भी यहां पे होना चाहिए था। 2, 7 बिलोंग्स टू R। तो सिमेट्रिक होने के लिए इस रिलेशन में 7, 2 भी होना चाहिए था। एंड 3, 8 बिलोंग्स टू R। तो यदि ये सिमेट्रिक होती तो 8, 3 भी इसका एलिमेंट होना चाहिए था, परंतु नहीं है। तो तीनों से ही क्लियर है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बिकॉज 1, 6 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R. For 1, 6 both belongs to the natural number. Hence the condition fails if either if a, b belongs to R, this implies b, a does not belongs to R. For a, b belongs to natural number, and this is the example which contradict the relation, symmetric relation, property of symmetric relation. Hence it is not a symmetric relation. तो बच्चों इस तरीके से हम एग्जाम्पल से भी इनके एलिमेंट्स को जज करके देख करके भी हम बता सकते हैं कि ये दी हुई रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है या नहीं। तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो थी नहीं, सिमेट्रिक भी ये रिलेशन नहीं है। नाउ लेट अस चेक whether this relation is transitive or not. For transitive, the property is if a, b belongs to R and b, c also belongs to R, then a, c must belongs to R. For a, b, c belongs to the natural number. तो बच्चों यहां पे सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये दोनों होने चाहिए। यदि ये दोनों नहीं है तो there are not any two order pairs which contradict the property of the transitivity. So here 1, 6 belongs to R, but 6, any number does not belong to this. तो यहां पर कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि 1, 6 के साथ हम उसे अलाइड करें ताकि ट्रांसिटिविटी को फेल कर सके। इसी प्रकार से 2, 7 है तो 7, something, there is no order pair present by virtue of which we can contradict or check the transitivity property of this relation. Similarly 3, 8 है तो 8, something यहां पे प्रेजेंट नहीं है जिससे कि हम ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को फेल कर सकें। तो यहां पर बच्चों there does not exist any two elements a, b belongs to R and b, c belongs to R. इस टाइप का कोई भी इस यहाँ पे ऑर्डर पेयर नहीं है which contradict the property of the transitive relation, जो कि a, c
डज नॉट बिलोंग्स टू आर प्रूव कर सके या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर प्रूव कर सके। यहां पे कोई ऐसा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट ही नहीं है जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को जो है वो फेल कर सके। Hence, the given relation is transitive relation। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। कहने का मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं है जिससे हम चेक कर सकें इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। Hence, this relation is symmetric, reflexive, not symmetric, not, therefore this relation is not symmetric, not, therefore this relation is neither reflexive nor symmetric but it is a transitive relation। तो इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, परंतु ट्रांजिटिव है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट करने जा रहे हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की 8 पार्ट है। और बच्चों ये 8 पार्ट जो जिन बच्चों को समझ आ गए तो उनको रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इसका 8th पार्ट है लेट ए बी द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए डिफाइंड एज R is equal to order pair x comma y such that x is wife of y for every x comma y belongs to the set A, where set A is the set of the human beings। तो बच्चों ये दिया हुआ है हमें रिलेशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस A is the set of human beings and R is the relation on the set A such that R is equal to x comma y such that x is wife of y। This is given to you। तो for रिफ्लेक्सिव में ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए जिसमें एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों सेम x comma x if belongs to the relation R then the relation R is said to be reflexive। So we know that x cannot be wife of x। x जो है वो x की wife नहीं हो सकती because x is, if x is female then this x cannot be male। x cannot be wife of x, this cannot be wife of herself। Hence x comma x does not belong to R for every x belongs to this A। Hence the relation is not reflexive। So this is the first step of this question, that the relation is reflexive or not। This relation is not reflexive because x comma x does not belongs to the relation R for every x belongs to the given set A। Now for symmetric, if x comma y belongs to R therefore y comma x must belongs to R। This is the condition for symmetric। यदि x comma y रिलेशन R का एलिमेंट है तो y comma x भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यदि x जो है वो is wife of y then y cannot be wife of x because if x is female and y is male then y cannot be wife of anyone because y is male। Hence this relation is not symmetric। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि x, y यदि रिलेशन R का एलिमेंट है तो y, x जो है वो रिलेशन R का एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि y जो है वो
मेल है एंड ही कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एनीवन. नाउ लेट अस चेक फॉर ट्रांजिटिव. नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन. तो फॉर ट्रांजिटिव देयर मस्ट एग्जिस्ट टू ऑर्डर पेयर x, y belongs to R and y, z belongs to R, which satisfied the property of transitive relation. तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशंस की प्रॉपर्टी है कि इफ x, y belongs to R, y, z belongs to R, then x, z must belongs to that relation R. और यदि उस रिलेशन में ऐसे दो ऑर्डर पेयर यदि हमें मिलते ही नहीं हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, जो कि उस प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट कर सकें, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होती है. तो इस केस में यही हो रहा है कि x, y बिलोंग्स टू R मीन्स x जो है वो y की वाइफ है, x इज द वाइफ ऑफ y, बट देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी ऑर्डर पेयर स्टार्ट फ्रॉम y बिकॉज y इज मेल not female. Y cannot be wife of anyone. Hence y, z belongs to R is not possible. Because y cannot be wife of anyone. He is male, not female. Hence there does not exist any two order pairs x, y belongs to R and y, z belongs to R, which contradict the property of transitive relation. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसे दो ऑर्डर पेयर प्रेजेंट ही नहीं है जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को कंट्राडिक्ट कर सकते हैं. तो कंडीशन यही होती है कि इफ x, y belongs to R and y, z belongs to R, then x, z must belongs to R. Hence, this relation is transitive relation. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 7th part. Let A be the set of human beings and R is a relation on the set A defined as R is equal to order pair x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y. Where A is the set of the human beings. तो इट इज क्लियर दैट फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, x, मस्ट बिलोंग्स टू द रिलेशन R. परंतु x और y में कंडीशन क्या है? इस x में और इसमें कंडीशन क्या है कि ये फर्स्ट एब्सिसा जो है वो ऑर्डिनेट से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए लेंथ में. But x cannot be 7 centimeter taller than x. Hence x, x does not belong to R for every x belongs to A, because x cannot be 7 centimeter or any centimeter taller than x. Hence this relation is not reflexive. अतः ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. यही चेक करना होता है हमने ये सिमेट्री के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कि x, x जो है वो इसका एलिमेंट है, वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट में जो कंडीशन दी होती है क्वेश्चन में, उसी को चेक करना होता है कि ये आपस में रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये x, x जो है वो इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है. देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. अब बच्चों हम सिमेट्री के लिए चेक करते हैं. रिलेशन वही है और x और y में कंडीशन है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. x एंड y जो है वो ये बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज A. तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन होती है कि इफ x, y बिलोंग्स टू R, देयरफॉर y, x must belongs to R for every x, y belongs to the given set A. But here, if
x is exactly 7 centimeter taller than y. In other word, यदि x, y belongs to R है तो x is exactly 7 centimeter taller than y. Then y cannot be exactly 7 centimeter taller than x. y, x तभी इस रिलेशन का एलिमेंट होगा यदि y जो है वो x से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर होगा, परंतु ये नहीं है, ये तो इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है y जो है x से, तो इसलिए एग्जैक्ट y cannot be exactly 7 centimeter taller than x. Hence, if x, y belongs to R, therefore y, x does not belongs to R. Hence, the given relation is not symmetric. तो ये दी हुई रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि x, y यदि रिलेशन का एलिमेंट है तो y, x इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। इस कंडीशन को देखते हुए कि यदि x y से 7 सेंटीमीटर टालर है तो y x से जो है वो 7 सेंटीमीटर स्मॉलर होगा, टालर नहीं होगा। Hence, the given relation is not a symmetry. Let's check for transitive property. For transitive, the condition is if x, y belongs to R, y, z belongs to R, therefore x, z must belongs to R. यदि ये दोनों हैं तब ये चेक करना है, अदरवाइज यदि ये दोनों हैं ही नहीं ऑर्डर पेयर उसमें रिलेशन आर में, तो इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगी ही होगी। तो यहां पर कंडीशन है इफ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y, दिस इज द कंडीशन बिटवीन x एंड y, एंड y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन z, then x must be not 7 centimeter, x must be exactly 14 सेंटीमीटर टालर देन z. x जो अब z से 14 सेंटीमीटर टालर हो जाएगा एग्जैक्टली। Hence, if x, y belongs to R, y, z belongs to R, therefore x, z does not belongs to R. इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि x और y में रिलेशन है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर टालर है, y और z में रिलेशन है कि y जब z से 7 सेंटीमीटर टालर है, और x और z में रिलेशन हो जाता है कि x जो है z से 14 सेंटीमीटर टालर हो जाएगा एग्जैक्टली। Hence, it does not belongs to the R. Therefore, the given relation is not transitive relation. तो इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन जो है वो ये सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो व्हाट इज द गिवन सेट ए, इट इज द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वो लिखना है। उसके बाद रिलेशन लिखनी है, और फिर एक्स और वाई के बीच में आपने इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है। तो इस तरीके से ये रिलेशन जो है वो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करती है। That's all.